میں حاملہ تھی اور غیر شادی شدہ بھی، لیکن میں پاک دامن تھی۔ میں نے کبھی کسی مرد کو دیکھا بھی نہ تھا۔ یہ سوچ سوچ کر میری جان نکل رہی تھی، یہ کس کا بچہ ہے، جب اچانک اماں نے میری شادی ایک خواجہ سرا سے کروا دی اور بولی، خواجہ سرا تیرے بچے کو نام دے گا۔ میں اس خواجہ سرا کے سامنے بھی نہ جاتی، مجھے اس سے بہت نفرت ہوتی۔ جب ایک دن اچانک کسی کام سے اس خواجہ سرا کے کمرے میں گئی تو یہ دیکھتے جان نکل گئی کہ میرا نام ماہم ہے، لیکن میں نے بچپن سے ہی سب کو مجھے ماہی بلاتے سنا تھا، اس لیے جب بھی کوئی میرا نام پوچھتا تو میں ماہی بتاتی۔ مجھے ماہی نام بہت پسند تھا۔ میری کل کائنات صرف میری ماں ہی تھی۔ اس بھری دنیا میں صرف ہم دونوں ہی ایک دوسرے کا سہارا تھے۔ مجھے نہیں یاد پڑتا کہ میں نے ہوش سنبھالتے ہی کسی اور رشتے کو اپنے آس پاس دیکھا ہو۔ میری ماں ہی میرا باپ بھی تھا۔ اس نے بڑی محنت اور مشقت سے مجھے پالا تھا۔ اماں بتاتی تھی کہ تیرا باپ تو تیرے پیدا ہوتے ہی چل بسا۔ تب سے لے کر اب تک اماں نے میری خاطر دوسری شادی نہیں کی تھی۔ اتنا شکر تھا کہ ابا امیر تھے، ورنہ ان کے جانے کے بعد تو ہم دربدر ہو جاتے۔ گھر بھی اپنا تھا اور ابا کے کاروبار سے ہر مہینے ایک مخصوص رقم اماں کے اکاؤنٹ میں آ جاتی تھی، جس سے ہمارا گزارا اچھی طرح سے ہونے لگا۔ اماں کی شادی بڑی کم عمر میں ہو گئی تھی اور پھر 1 سال بعد ہی میں پیدا ہو گئی اور اسی وقت ابا کا بھی انتقال ہو گیا۔ تو میری ماں مجھ سے صرف 18 سال بڑی تھی اور میری ماں کی بجائے میری بڑی بہن لگتی تھی۔ میرے ننیال والوں نے ابو کی وفات کے بعد اماں کو اپنے ساتھ لے جانے سے منع کر دیا تھا کہ سسرال میں رہو اور عیش کرو، ہم تمہیں اور تمہاری بیٹی کو نہیں پال سکتے۔ دادی اور پھپھو ہمارے ساتھ رہتی تھیں اور ہر وقت میری ماں کا جینا حرام کیے رکھتی۔ بعد میں پھپھو کی شادی ہو گئی اور جب میں 10 سال کی ہوئی تو دادی چل بسی۔ اماں جب مجھے اسکول چھوڑنے جاتی تھی تو سب کو یہی لگتا تھا کہ میں اپنی بڑی بہن کے ساتھ آتی ہوں۔ ایک تو اماں کی عمر کم تھی اور دوسرا دبلی پتلی ہونے کے باعث وہ اپنی عمر سے کئی گنا چھوٹی نظر آتی۔ کوئی ان کو دیکھ کر یقین ہی نہیں کر سکتا تھا کہ وہ ایک 10 سال کی بچی کی ماں ہے۔ مجھے یاد ہے جب وہ میرے اسکول کے ہیڈ ماسٹر کو معلوم ہوا تو وہ بڑے حیران ہوئے تھے۔ کچھ دنوں بعد ہی انہوں نے اماں کے لیے رشتہ بھی بھیج دیا۔ میں بہت خوش تھی کہ اب مجھے باپ کا پیار مل جائے گا، مگر اماں نے منع کر دیا۔ کہنے لگی، جب تو چھوٹی تھی تو اور بات تھی، مگر اب تو بڑی ہو گئی ہے، اب بس میں تیری ہی پرورش کروں گی اور اچھے طریقے سے اور یہی کام کروں گی۔ اماں نے واقعی میری بہترین پرورش کی۔ میں اسکول سے آنے کے بعد مدرسے جاتی تھی۔ دینی اور دنیاوی تعلیم ساتھ ساتھ چل رہی تھی۔ اسکول کے فنکشن پر میری اماں جاتی تو مجھے شرمندگی ہوتی تھی، کیونکہ باقی سہیلیوں کی مائیں اتنی خوبصورت تھیں کہ میں انہیں دیکھتی رہ گئی۔ مجھے ایک دن میری سہیلی کہنے لگی، تمہاری امی اتنی ینگ ہیں مگر لگتا ہے وہ اپنا خیال نہیں رکھتی۔ میری ماما تو ہر ہفتے بیوٹی پارلر جاتی ہیں اور روز رات کو سونے سے پہلے کریم لگا کر سوتی ہیں۔ تم بھی اپنی ماما کا خیال رکھا کرو۔ مجھے پتا تھا کہ اماں خود تو اپنا خیال رکھیں گی نہیں، اس لیے میں نے ہی زبردستی روز رات کو انہیں کریم لگانی شروع کر دی، ان کے سر کی مالش کرتی۔ روز اماں کو صبح اپنے ساتھ واک پر لے جانا شروع کر دیا تاکہ میری ماں بھی سہیلی کی ماؤں کی طرح حسین نظر آ سکے۔ پارک میں جا کر میں تو جھولوں پر بیٹھ جاتی اور اماں پورے پارک کا چکر لگاتی۔ اب میں آہستہ آہستہ بڑی ہو رہی تھی اور مجھے احساس ہو رہا تھا کہ یہ دنیا حسین کم عمر اور جوان بیوہ کے لیے کتنی مشکل ہے۔ سب میری ماں کو عجیب نظروں سے دیکھتے تھے۔ اب وہ صرف صبح اور شام سیر کے لیے باہر نکلتی تھیں، ورنہ گھر میں ہی قید رہتی تھیں۔ میں نے انٹر کر لیا تھا اور اب MBBS کے لیے دوسرے سال میں تھی۔ پچھلے 3-4 برسوں سے میں پڑھائی میں اتنا مصروف ہو گئی کہ امی کو وقت ہی نہیں دے پا رہی تھی۔ ان کا بھی اب زیادہ وقت باہر سہیلیوں کے ساتھ گزرنے لگا۔ میں 18 سال کی اور اماں 36 سال کی ہو گئی تھیں، لیکن کسی بھی طرح وہ 30 سال سے اوپر کی نہیں لگتی تھیں، اور آج کل تو 30 سال کی عمر میں لڑکیوں کی شادی ہوتی ہے۔ اس لیے جس کو نہیں پتا ہوتا تھا اس کو یہی لگتا تھا کہ میری ماں ایک کنواری لڑکی ہے۔ کبھی کبھی لوگوں کی ایسی غلط فہمی پر میں ہنس دیتی اور کبھی کبھی مجھے غصہ آتا کہ دنیا والے بھی نہ کسی کو جینے نہیں دیتے۔ میں اپنی دنیا میں مگن تھی، مجھے ڈاکٹر بننا تھا، اس لیے میں اندازہ ہی نہ کر سکی کہ میں اپنی ماں سے کتنا دور جا رہی ہوں۔ اس بیچاری کے پاس میرے علاوہ ہے کون، مگر مجھے خیال ہی نہ آیا۔ ایک دن صبح 5 بجے میری آنکھ کھلی تو میری ماں گھر پر نہیں تھی۔ میں نے سوچا کہ اماں تو پارک میں ہوگی۔ مجھے سستی سی ہو رہی تھی، اس لیے سوچا کہ اپنی کتابیں لے کر میں بھی پارک میں چلی جاتی ہوں۔ وہاں جا کر اماں کو بہت ڈھونڈا مگر وہ کہیں نظر ہی نہ آئیں، تو میں پریشان ہو کر گھر واپس آ گئی۔ 1 گھنٹے بعد کہیں جا کر اماں گھر آئیں۔ میں نے ان کو مشکوک نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا، کہاں تھی تم؟ پارک میں تو کہیں نظر نہیں آئی۔ اماں نے حیرت سے مجھے دیکھا اور کہنے لگی، تو پارک گئی تھی؟ اگر جانا تھا تو میرے ساتھ چلی جاتی، میں سیر کرنے اب اس پارک میں نہیں جاتی۔
वो जो नई कॉलोनी बन रही है ना, वहाँ जाती हूँ। अम्मा की वजाहत पर मैं मुतमईन हो गई थी। डॉक्टर बनना मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा ख्वाब था। मैं एमबीबीएस के तीसरे साल में थी जब वो हादसा हुआ जिसने मेरी पूरी जिंदगी को यकसर तब्दील करके रख दिया। मुझे हालात ने वो रुख दिखाया जिसको देखने की चाह मुझे कभी नहीं रही थी। मेरी जिंदगी अच्छी खासी जा रही थी। मैं रोज सुबह 5 बजे उठती और घर की छत पर जाकर पढ़ना शुरू कर देती। फिर मेडिकल कॉलेज चली जाती। वहाँ से वापस घर आकर भी मैं पढ़ती रहती। मैंने 2 साल टॉप किया था और अब भी मेरा इरादा यही था कि अपने कॉलेज में टॉप करूं। इसलिए मैं दिन रात पढ़ती रहती थी। अम्मा मुझे बहुत मना करती कि खाने पीने का ध्यान रखो, इस तरह बीमार हो जाओगी, मगर मेरे सर पर जो टॉप करने का भूत सवार था वो मुझे चैन नहीं लेने दे रहा था। पहले कुछ दिनों से मैं नोट कर रही थी कि मेरी तबीयत कुछ अजीब सी हो रही है। हर वक्त मतली और दिल खराब रहने लगा। शुरू में तो इतना गौर नहीं किया मैंने कि कमजोरी की वजह से शायद ऐसा है, मगर फिर आहिस्ता आहिस्ता मुझे चक्कर आने शुरू हो गए। एक दिन मैं अम्मा के साथ रात का खाना खा रही थी कि मुझे मतली हुई और कै आ गई। मैं भागकर वॉशरूम में भागी। वापस आई तो मेरी माँ मुझे मशकूक अंदाज में देख रही थी। मैंने उलझते हुए पूछा, अम्मा यूं क्या देख रही हो? कहने लगी कि पिछले कई दिन से मैं देख रही हूँ तेरी तबीयत कुछ गिरी गिरी सी रहती है, सब खैर तो है ना? मैंने लापरवाही से कहा, खैर ही है अम्मा, कमजोरी हो गई है। मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था कि अम्मा क्या सोच रही हैं। अम्मा फिर से मशकूक नजरों से घूरने लगी तो एकदम से मैं समझ गई सारी बात। मैंने नाराज होते हुए कहा, हद हो गई अम्मा, कैसी बातें सोच रही हैं आप अपनी बेटी के बारे में? अम्मा कहने लगी, तो कैसी बातें सोचूं? तेरी हालत चीख चीख कर कह रही है कि दाल में कुछ काला है। तो मुझे सच सच बता, क्या बात है? मैं अपनी माँ की इस बात पर हैरान रह गई कि वो कैसी बातें कर रही हैं। क्या वो मुझे जानती नहीं कि मैं किस किस्म की लड़की हूँ? मैंने कहा, अम्मा तुमसे मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी। मैं वहाँ से नाराज होकर उठ आई, लेकिन अंदर ही अंदर मैं परेशान हो गई क्योंकि सारी निशानियां तो वही थी जो किसी को भी शक में डाल सकती थी। मगर मैंने सोचा कि ऐसे कैसे हो सकता है? मैंने तो आज तक बहुत साफ सुथरी जिंदगी गुजारी थी और कभी किसी मर्द के करीब जाना तो दूर, मैंने तो किसी से दोस्ती तक नहीं की थी। मेडिकल कॉलेज में लड़कियों और लड़कों में दोस्ती होना बहुत आम सी बात है, मगर वहाँ भी मैं सबसे दूर ही रहती थी, इसलिए ऐसा तो किसी सूरत मुमकिन ही नहीं था। जरूर कोई बीमारी लग गई होगी, कल ही मैं अपने टेस्ट करवाऊंगी। मैंने यही सोचा था, मगर सुबह कॉलेज जाते हुए मुझे चक्कर आ गए और मैं वहीं लड़खड़ा कर गिर गई। होश आया तो खुद को अपने बिस्तर पर पाया। डॉक्टर सरहाने ही खड़ी थी। मुझे उठते देखकर कहने लगी, तुम लेटी रहो, तुम उम्मीद से हो, अपना ख्याल रखो, कमजोरी बहुत हो गई है जो ठीक नहीं है। डॉक्टर की बात सुनकर मेरे सर पर आसमान टूट पड़ा। मैंने उठते हुए कहा, आपको कोई गलत फहमी हुई है, ऐसा कैसे मुमकिन है, बल्कि ये नामुमकिन है, मैं उम्मीद से हो ही नहीं सकती। मेरी अम्मा जल्दी से बोली, आप इसकी बातों पर ना जाइए, मेरे साथ आए, मैं बताती हूँ। अम्मा डॉक्टर को लेकर बाहर चले गईं। अम्मा के आने तक मुझ पर कई क़यामतें आकर गुजर चुकी थी। मेरे होशो हवास फना हो गए थे। डॉक्टर की बात में किसी सूरत मानने को तैयार ही नहीं थी। अम्मा ने अंदर आते ही मुझे इंतहाई गुस्से से पूछा, कहाँ मुँह काला किया है तुमने? जब मैं पूछ रही थी तो उस वक्त कह रही थी कि अम्मा ऐसी कोई बात नहीं, मगर अब देख लो तुम्हारे सामने डॉक्टर ने क्या कहा है, और अब ये मत कहना कि इसे गलत फहमी हुई है। शहर की मशहूर गायनाकोलॉजिस्ट है वो। मैं रोने लगी। मैं पाक दामन थी। इतना बड़ा बुहतान मुझ पर क्यों लगाया जा रहा था? अम्मा मुझे खूब सुना कर चली गईं। मैं सोच में पड़ गई कि अचानक 1.5-2 महीने वाले वाक़े मेरे जहन में ताज़ा हो गया। उस दिन अम्मा को किसी करीबी अजीज़ की वफ़ात पर जाना था। मैंने साथ जाने से साफ मना कर दिया। मैं छुट्टी नहीं कर सकती थी। अम्मा ने घर के बाहर वाले दरवाजे पर ताला लगा दिया और कहा था कि मैं सुबह सुबह आ जाऊंगी तेरे कॉलेज जाने से पहले ही, तो ध्यान से रहना। अम्मा के जाने के बाद सारा दिन मैं पढ़ाई करती रही और रात को भी जाकर पढ़ रही थी, क्योंकि मेरा सुबह टेस्ट था। रात के 12 बजे थे जब मैंने अचानक किसी के कूदने की आवाज़ सुनी। ऐसा लगा कि कोई घर के अंदर घुसा था। देखा तो एक चोर था जो इधर उधर देख रहा था। बाहर गेट पर लगे ताले को देखकर वो अंदर कूद गया था ताकि चोरी कर सके, मगर उससे क्या इल्म था कि मैं भी घर पर मौजूद होंगी। मैंने अपने मेज से गुलदान उठा लिया और उसके पीछे अम्मा के कमरे में चली गई। उसने शायद कदमों की आहट सुन ली, इसलिए जैसे ही मैं उसे गुलदान मारने लगी उसने फौरन मेरे हाथ पकड़ लिए और उसे खींचा तानी में वो लोहे का गुलदान मेरे सर पर लग गया और मैं बेहोश हो गई थी। उसके बाद मुझे सुबह ही होश आया। उस वक्त तो मैंने इस वाक़े को फरामोश कर दिया
मगर अब मैं सोच रही थी कि उस चोर ने मेरे साथ कुछ गलत ना कर दिया हो। आखिर अकेली और जवान होशो हवास से बेगाना लड़की को देखकर किसी की भी नीयत खराब हो सकती है और उसके अंदर का शैतान जाग सकता है। तो क्या मालूम मेरे साथ उस रात क्या हुआ हो जिसका खमियाजा इस तरह आज भुगतना पड़ रहा है। ये सोच सोचकर मेरी जान निकली जा रही थी कि आखिर ये किसका बच्चा है। मैंने सोचा कि अपने कॉलेज जाकर अपनी सीनियर से टेस्ट करवाऊंगी, मगर फिर सोचा कि इस तरह तो मेरी ही इज्जत का जनाजा निकल जाएगा, मैं बदनाम हो जाऊंगी। मैं कॉलेज भी न गई। अम्मा मुझे आते जाते ऐसी नज़रों से देखती थीं कि मैं शर्मिंदगी से ज़मीन में गिर जाती थी। 3 दिन गुजरे कि अम्मा ने मेरे सर पर आकर ऐसी क़यामत तोड़ी जिसका मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी। अम्मा ने कहा कि मैं तेरा निकाह करने वाली हूँ, वो भी ख्वाजा सरा से, क्योंकि मैं तेरी वजह से होने वाली बदनामी नहीं सह सकती। वो तेरे बच्चे को अपना नाम दे देगा। वो ख्वाजा सरा है, कोई ये नहीं जानता। दुनिया उसकी असलियत के बारे में नहीं जानती। इस शादी से तुम दोनों का भरम रह जाएगा। मैं बहुत रोई और चीखी चलाई कि अगर मेरा निकाह ही करना है तो किसी मर्द के साथ करो। मगर अम्मा कहने लगी, शरीफ मर्द तेरे जैसी औरतों को कबूल नहीं करते। इस बात पर मैं चुप होकर रह गई। मैंने निकाह वाले दिन उसे देखा तो अपनी किस्मत पर सब्र करके बैठ गई। वो तो अम्मा से भी 2-4 साल बड़ा था। सिर्फ यही नहीं, अम्मा ने ये भी कहा कि अब से ये हमारे साथ हमारे घर पर ही रहेगा। मैंने अम्मा से साफ कह दिया कि मैं इसके साथ एक कमरे में नहीं रहूंगी। खिलाफे तवक्का अम्मा ने कहा, ठीक है, मैं उसको अलग कमरा दे दूंगी, मगर दुनिया वालों की नज़र में वो तेरा शौहर रहेगा और तेरे होने वाले बच्चे का बाप। मैंने दोबारा कॉलेज जाना शुरू कर दिया। अब मैं ज़्यादा से ज़्यादा वक्त कॉलेज और अस्पताल में ही गुजारने लगी ताकि मुझे उसकी शक्ल न देखनी पड़े। मुझे अपने इस नाम नहाद शौहर से नफरत सी होने लगी। मैं उसकी शक्ल तक को देखने की रवादार नहीं थी। मेरा बस चलता तो मैं उसे अपनी नज़रों से हमेशा के लिए ही गायब कर देती। मैं अपने काम से काम रखती थी। मैंने उसे कभी बुलाया तक नहीं था। हालांकि शादी को 1 हफ्ता गुजर चुका था। एक दिन मुझे एक किताब की ज़रूरत पड़ी, लेकिन वो उस ख्वाजा सरा यानी मेरे शौहर के कमरे में थी। रात का 1 बज रहा था और वो किताब मुझे लाजमी चाहिए थी। आखिर मैं फैसला करके उठी और उसके कमरे की तरफ बढ़ गई। मुझे उसके कमरे से बोलने की आवाज़ आई तो मैं हैरान हो गई कि वो रात के इस पहर किससे बात कर रहा है। मैंने थोड़ा सा दरवाज़ा खोल कर देखा तो अंदर का मंजर देखकर मेरी जान निकल गई। वो मेरी माँ से बातें कर रहा था। मेरी माँ सोफे पर बैठी हुई थी और वो बेड पर। दोनों शायद मेरे ही बारे में बात कर रहे थे, क्योंकि मुझे अपना ही नाम सुनाई दिया था। वो कह रहा था कि ठीक है, माही के साथ जो हुआ वो ठीक नहीं, मगर आप भी अपने साथ गलत कर रही हैं। उसको सच्चाई बता दें, वो आपकी बेटी है। मेरी माँ कहने लगी, इतनी बड़ी सच्चाई बताने की हिम्मत नहीं मेरी। अगरचा सोचा तो ये था कि उसको बहुत जल्द हकीकत बता दूंगी, मगर डर जाती हूँ कि मालूम नहीं वो मुझे माफ़ करेगी भी या नहीं। मैं ये सब सुनकर उलझते हुए वापस अपने कमरे में आ गई। अम्मा की अधूरी बातों ने मेरे तजस्सुस को जगा दिया था कि ऐसी क्या बात है जो अम्मा मुझसे छुपा रही हैं, मगर इस शख्स को सब पता है। मैंने अम्मा और अपने इस ख्वाजा सरा शौहर पर नज़र रखने का फैसला कर लिया। अगरचा मुझे अब इस बात पर भी शक होने लगा था कि वो ख्वाजा सरा है भी या नहीं, क्योंकि उसकी शक्ल और हरकतें देखकर तो बिल्कुल भी नहीं लगता था कि वो मर्द नहीं है। मैं सुबह 6 बजे उठी तो छत पर चली आई। बाहर से अम्मा को अपने शौहर के साथ आते देखकर मैं हैरान रह गई। मैं नीचे उतरी तो मुझे देखकर अम्मा बौखला गईं। मेरे पूछने से पहले ही खुद बताने लगी कि मैं और असफर सैर के लिए गए थे। जानती तो हो कितनी पक्की आदत बन गई है सैर करने की। मैंने कुछ नहीं कहा। पता नहीं कुछ था जो मुझे खटक रहा था। ऐसा महसूस हो रहा था कि गलत हो रहा है। मैंने शादी के बाद से घर पर नाश्ता नहीं किया था। आज मैं भी नाश्ते की टेबल पर बैठ गई तो मैंने महसूस किए बगैर न रह सकी कि वो मेरी माँ के आगे हर चीज़ रखकर उसे बार बार खाने का पूछ रहा था। मैं दिल ही दिल में सोचने लगी कि अम्मा को ये ख्वाजा सरा कहाँ मिला। दोनों की बेतकल्फी से लग रहा था कि काफ़ी अरसे से वो दोनों एक दूसरे को जानते थे। मैंने अम्मा से पूछा तो वो कहने लगी, हाँ, मैं जिस कॉलोनी में सैर करने जाती हूँ ये वहीं रहता है। काफ़ी सालों से मैं इसको जानती हूँ। मैंने सोचा जो शख्स मेरा शौहर बना बैठा है, मुझे तो इसके बारे में बिल्कुल भी इल्म नहीं कि कौन है, क्या करता है। इसकी मालूमात निकलवानी पड़ेंगी। यही सब सोचते मैं कॉलेज आ गई। मेरी सहेली कहने लगी, शुक्र है तुम्हारे चेहरे पर रौनक तो नजर आई। पिछले दिनों तुम काफ़ी बीमार लग रही थी। इसकी बात से मैं चौंक गई। ये बात तो मैंने नोट ही नहीं की थी। जब से मेरी शादी हुई थी उस दिन के बाद से मुझे ना ही चक्कर आए थे और ना ही मतली या कै आई थी। मैं जिससे बिल्कुल ठीक हो गई थी। ये बात भी बड़ी हैरान कुन थी। छुट्टी हुई तो मेरी सब दोस्तों का प्लान बन गया कि साहिल समंदर पर जाएंगे। मेरा दिल तो नहीं था, मगर फिर भी मैं बाकी सबके साथ चली गई। वहाँ 2-3 घंटे गुजारने के बाद जब हम वापस जाने लगे तो एक नज़र ने मुझे सुन कर दिया। एक तरफ लहरों में पांव डुबोए मेरी माँ और शौहर वहाँ इर्द गिर्द से बेनियाज बैठकर बातें कर रहे थे।
ये मंजर देखकर मेरे अंदर आग लग गई। मैंने उनके सर पर पहुंचकर ताली बजाई तो दोनों चौंक कर मेरी तरफ देखने लगे। मेरी माँ घबरा कर खड़ी हो गई, लेकिन वो शख्स पुरसुकून सा बैठा रहा, जैसे उसे मेरे आने से कोई फर्क ही ना पड़ा हो। मेरी माँ कहने लगी, माही तुम यहाँ? मैंने कहा, माँ तुम बताओगी कि यहाँ क्या चल रहा है? तुम आजकल इस आदमी के साथ कुछ ज्यादा ही उठने बैठने लगी हो, खैर तो है? मेरे लहजे में बदतमीजी थी, मगर उस वक्त मुझे एहसास नहीं था। वो शख्स उठ खड़ा हुआ और मुझसे बोला, मलिहा से तमीज से बात करो, वो तुम्हारी माँ है। मैंने कहा, अच्छा फिर तो इस हक से वो तुम्हारी भी माँ हुई ना, तो फिर तुम क्यों इतनी बदतमीजी से मेरी माँ का नाम ले रहे हो? क्या तुम्हें जेब देता है? वो मेरी बात पर लाजवाब हो गया, चुप करके रह गया। मैं वहाँ से उसी वक्त घर आ गई। मुझे इन दोनों की इस हद तक बातचीत की समझ नहीं आ रही थी। रात के 12 बजे मैं फिर उठकर किताब लेने आई, कल भी नहीं ले पाई थी। झटका लगा जब आज भी मेरी माँ की आवाज़ उसके कमरे से सुनाई दी। वो माँ से कह रहा था, मैं कल माही को सब सच बता दूंगा। आखिर कब तक ये बात छुपाएंगे? इसको ये बात बताने के लिए ही तो इतने ड्रामे किए हैं, फिर हिम्मत पैदा करें खुद में। अम्मा रोने लगी, कहने लगी, मैं उससे ये सच कैसे बताऊंगी कि तुम उसके नहीं मेरे शौहर हो? हामला वो नहीं बल्कि मैं हूँ। और उसे कैसे कहूँगी कि उसकी माँ ने दुनिया वालों के डर से उसे इस्तेमाल किया है? कैसे बताऊँ ये सब क्यों किया? मैं दरवाजे के बाहर खड़ी सुन रही थी। ये बात इतनी दिल दहला देने वाली थी कि मुझे अपना दिल रुकता हुआ महसूस हुआ। ये सब क्या कह दिया था मेरी माँ ने? मुझे अपने कदमों तले से ज़मीन निकलती हुई महसूस हुई। मैं खड़ी रह न पाई और दरवाजे पर ही गिर गई। मेरे गिरने की आवाज़ सुनकर वो दोनों भागते हुए बाहर आए। अम्मा ने मेरे चेहरे की रंगत से अंदाज़ा लगा लिया कि मैं सब जान चुकी हूँ। वो बहुत शर्मिंदा हो रही थी। मैं भागकर अपने कमरे में आ गई। इतना बड़ा धोखा! मेरी माँ ने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया कि मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था। एक सगी माँ अपनी औलाद के साथ ये सब कर सकती है? अम्मा दरवाज़ा खटखटाने लगी और कहने लगी, एक बार मेरी बात सुन लो। मेरा गुस्सा थोड़ी देर बाद कम हुआ तो मैंने दरवाज़ा खोला और अपना सामान पैक करने लगी। मैंने सोच लिया था कि मैं यहाँ नहीं रहूँगी। अम्मा ने आकर मेरे आगे हाथ जोड़ दिए, कहने लगी कि मेरी पूरी बात सुन लो। माँ अपनी कहानी सुनाने लगी। असफर मेरे चचा का बेटा है। बचपन में ही हम दोनों की मंगनी हो चुकी थी। सारे खानदान को पता था कि बड़े होने पर हम दोनों की शादी हो जाएगी। मगर जब मैं 15 साल की हुई तो अब्बा और चचा में जाने क्या झगड़ा हुआ कि दोनों खानदानों ने ही रिश्ता खत्म कर दिया। मगर हम दोनों के दिलों से एक दूसरे की मोहब्बत खत्म ना हो सकी। 2 साल तक हम इंतजार करते रहे कि हमारे घर वालों की लड़ाई खत्म हो जाए, मगर ना हो सकी। मेरे 17 साल के होते ही अब्बा ने जबरदस्ती मुझे अमीर आदमी से ब्याह दिया, जो उम्र में मुझसे 15 साल बड़ा था। शादी के 1 साल बाद ही शौहर फोत हो गया। सब मुझसे दूसरी शादी का कहने लगे। मैं चाहती थी कि असफर से ही शादी करूं, मगर किस्मत को हमारा साथ शायद मंजूर नहीं था। असफर मुल्क छोड़कर ही चला गया था और उसने इतने साल किसी से राब्ता नहीं किया। अभी कुछ साल पहले ही वापस आया है। मैं जिस कॉलोनी में सैर करने जाती थी, इसने वहीं घर ले लिया। मेरी उससे मुलाकात वहीं पर हुई थी। एक दूसरे को मिलते ही पुरानी मोहब्बत जाग उठी। असफर ने अभी तक शादी नहीं की थी। अगर वो चंद साल पहले मिलता तो मैं शादी कर भी लेती, मगर अब तुम जवान हो गई थी, इसलिए मैंने उससे शादी से इनकार कर दिया। मेरी दोस्त ने मुझे समझाया कि 2-3 बरस में बेटी की शादी करके तुम अकेली रह जाओगी। अभी तुम जवान हो, सारी उम्र अकेली कैसे गुजारोगी? किसी मर्द का मजबूत सहारा बहुत ज़रूरी है। शायद अंदर से मैं भी अकेली रह रह कर थक चुकी थी, किसी की मोहब्बत चाहती थी, इसलिए मैंने असफर से शादी कर ली। 1 साल पहले की बात है। मैं चाहती थी जब तुम्हारी शादी हो जाए तो इसके बाद अपनी शादी का तुम्हें बताऊंगी। तुम तो अपनी पढ़ाई में मगन थी, इसलिए मेरा सारा वक्त असफर के साथ गुजरने लगा। 1 महीने पहले ही मुझे मालूम हुआ कि मैं माँ बनने वाली हूँ तो मैं डर गई। दुनिया के सामने अभी तक मैं बेवा ही थी। ऐसे में अगर राज खुलता तो मेरी बदनामी हो जाती, इसलिए ना चाहते हुए भी मुझे तुम्हें इस्तेमाल करना पड़ा। मैंने तुम्हें ऐसी दवा दी जिससे तुम्हें चक्कर और मतली आए, ताकि मैं तुम्हें हामला साबित कर दूं। फिर तुम्हारे निकाह का नाटक किया। वो नाटक ही था, क्योंकि ना तो मौलवी साहब असल थे और ना ही कोई दुल्हा था। बस तुमसे पूछकर यकीन दिलाना था कि तुम्हें की शादी हो गई है। तुम्हें और असफर को अलग करने के लिए मुझे झूठ का सहारा लेना पड़ा, क्योंकि ये ख्वाजा सरा है, ताकि तुम इससे दूर रहो। मेरा इरादा था कि अपने बच्चे को दुनिया के सामने तुम्हारे बच्चे की हैसियत से लाऊंगी, ताकि बदनामी से बच जाऊं। मैं तुम्हें सब सच बताना चाहती थी, मगर हिम्मत नहीं हो पाती थी। अम्मा की सारी कहानी सुनकर मैं साकत रह गई। अम्मा के शौहर असफर ने आगे बढ़कर कहा कि तुम्हारी माँ ने कुछ गलत नहीं किया, हमने निकाह किया है, कोई गुनाह नहीं। मैंने आगे बढ़कर अम्मा को गले लगाकर माफ़ी मांगी कि मेरी वजह से मेरी माँ को जाने कितना अरसा तन्हाई का शिकार रहना पड़ा। मैंने कहा, अम्मा दूसरे मोहल्ले में जाकर रहते हैं जहाँ हमें कोई न जानता होगा। कुछ दिनों बाद हम नए मोहल्ले में शिफ्ट हो गए। वहाँ सबको यही बताया कि ये मेरी माँ और वो मेरे बाप हैं। कुछ महीनों तक मेरा एक और भाई या बहन दुनिया में
آنے والے ہیں۔ کسی نے اعتراض نہیں کیا اور کسی کا اعتراض کرنا بنتا بھی نہیں تھا۔ بیوہ کی دوسری شادی اسلام میں جائز ہے۔ اسلام کو آسان کر لیں گے تو زندگی اتنی ہی آسان ہو جاتی ہے۔